Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay. Yes, I think it should be good evening. Yes. Uh, so actually, it was not your fault. I may have disturbed so many of you from your afternoon rest. So I think if you are wishing me good afternoon, then also it's okay. You're not, then also it's okay. Okay, so it's better to wish good evening first of all. And the thing is, last time we did respiration and that is completed. Am I right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, fine. Fine. So that respiration part is being completed. Now, let's begin with the transportation or the circulation in humans. Okay. So थोड़ा सा complex topic है. So keep your books with you so that you can note down the things easily with yourself. Okay. So let's have a look on this. Hmm, transportation. Okay. So first of all, do understand that in our body we need to transport so many things. पहले तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है. हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है CO2, O2. That means in short, respiratory gases. Okay, including H2O, including nutrients. Okay, so all these things are being transported in human body. अब ट्रांसपोर्ट करने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीके भी हैं, बहुत सारे हैं. ठीक है. Some respiratory gases are being taken up by the respiratory system, but once it is inside, then the major transport जो हमारा काम करता है, संभालता है सारी चीजों को, that is blood. Okay, that is blood. Now, blood is the major transportation unit because सबसे सिंपल सी प्रोसेस ये समझो कि हम जो भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज होता है, तभी सारे ऑर्गन्स को मिलता है. CO2 जो बॉडी रिलीज करती है वो ब्लड को ही देती है, तो ब्लड ही उसको लेकर बाहर रिलीज करवाता है. सिमिलरली जो भी आप पानी पी रहे हो या खाना खा रहे हो, वॉट एवर यू आर ईटिंग, एवरीथिंग इज बीइंग डाइजेस्टेड एंड दीज डाइजेस्टिव थिंग्स, डाइजेस्ट जो हो चुका है, all these things are being absorbed and the nutrients, the nourishment part of the food is being added to the blood. So blood is the one which is carrying the nutrients also, and it is giving it for to each and every part of the body. Okay, so these are the two things. With this, blood takes up the responsibility of hemoglobin. Blood takes up the responsibility of so many other toxins जो आपकी बॉडी में जमा हो जाते हैं. So blood is responsible for huge number of things to get transported from one point to another. Understood this part? Yes, ma'am. Okay, fine. So next, let's begin with this blood. Okay, blood दो पार्ट से बनता है. एक है सेल्यूलर पार्ट और एक है फ्लूइड पार्ट. ओके, सो सेल्स इंक्लूड करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को. आरबीसी को बायोलॉजिकली बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स. Okay, while WBC are called
leukocytes. So cytes means cells. The cytes means cells, and erythro means red. Okay. Similarly, cytes here cells. Okay. Leuco means white. So white blood cells that you should remember, and platelets. Platelets are responsible for the clotting of the blood. आपको चोट लगती है तो वो अपने आप हील होना शुरू हो जाता है, तो वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ब्लड की ही. ओके. एंड द प्लाज्मा. यस. Platelets are responsible for the clotting of blood. Blood clotting. Okay. So these blood clotting units are responsible. जब भी आपको कोई भी internal external अगर blood release हो रहा है, so आपको ये समझना है कि blood clotting होना चाहिए. That means to stop the blood through platelets. Now see this. If you talk about humans, हम humans की बात कर रहे हैं, तो we have closed circulatory system. Okay, humans are having closed circulatory system. अब आप पूछोगे मैम क्लोज्ड क्या है? क्लोज्ड वो है जो आपने क्लास 9th में आपके चैप्टर जो है वो बोर्ड ने या आपके एजुकेशन अथॉरिटी ने जिस चैप्टर को हटा दिया है ये उसमें से निकला हुआ है. ठीक है. सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर ये चीज समझो कि ओपन सर्कुलेटरी होता है और एक होता है क्लोज्ड. क्लोज्ड मतलब हमारा जो ब्लड है वो एक पैसेज में ही बहता रहता है, मतलब उसके लिए ब्लड वेसल्स हैं, उसका हल या हार्ट है, तो वो उसी पैसेज के थ्रू रन करता है. ब्लड जो है वो हमारी बॉडी कैविटी में ऐसा ही नहीं पड़ा हुआ है फिलिंग की तरह, तो पूरा ब्लड भरा हुआ है ऐसे हो जाएंगे तो बाहर आ जाएगा, ऐसा टाइप का नहीं है. सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा पूरा, मतलब उसका डिसीजन जो है वो फिक्स्ड है कि उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में कैसे जाना है, लेफ्ट से राइट में कैसे जाना है, क्या करना है. एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. Now see this. Next is that is plasma. आपको पता चली गया. That's a fluid portion. So fluid plus cells will make the good. Uh, now the lymph. Lymph is the one which is ऐसा fluid है जो हमारे टिश्यूज जो है वो रिलीज करते हैं, ब्लड वेसल्स उनको रिलीज करते हैं. तो वो सारा जो फ्लूइड है वो कहाँ पर जाके जमा हो जाता है? लिम्फेटिक पैसेज में, और लिम्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है. डिटेल में लिम्फ हम बाद में पढ़ते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लड एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ब्लड वेसल्स डिफरेंस देख रहे हो? Just don't read the heading over here, it's wrong one. Read like this. This is capillaries, arterioles. ओके. इस साइड जो है वो वेन्स हैं और इस साइड जो है वो आर्टरीज है. कैन यू सी द डिफरेंस इन द डायग्राम ऑन योर ओन?
Yes, ma'am. The walls of arteries is thick and the walls are thin. Okay, just do one thing by observing this diagram. Just write down at least minimum 3 differences of arteries and veins. All of you. Have you told about arteries? Yes? Have you told about arterioles? No, I am saying write down the difference between arteries and veins. Minimum 3 differences. Can you write it down or not? Just see that. Ma'am, I have written two differences. 2 differences by observing the diagram. Yes, ma'am. Okay, others? Yes, ma'am. Only 12. Have you written? Others are they are waiting कि कोई बता देगा तो हम भी लिख लेंगे. ऐसा है क्या? मैम मैंने भी 2 ही लिखा है. 2 हुआ. ऑब्जर्व द डायग्राम वेरी शार्पली. थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो और डिफरेंस मिलेगा आपको. Ma'am, I got the third point, but I'm not sure about. ओके, राइट राइट लिख के रखो. Yes, ma'am. Got that. Written everybody done? Yes, ma'am. Shall I? मैं बताऊं? Yes, ma'am. Okay. So first of all, arteries. Most of the arteries are responsible for to carry the oxygenated blood. They are responsible to carry out the oxygenated blood
while veins are responsible to carry the deoxygenated blood. Okay. Second difference. Can you see the thickness? Ma'am, walls are thin. Or hand here. See the thickness. This much. Ma'am, in arteries, the inner walls are thick but not thin, and in veins, the inner walls are thin but outer walls. Only the layers you will get. The arteries have the inner layers of the arteries are thick while veins are thin. One more difference, if you have not noticed, can you see this lumen, this space through which the blood is going? Yes, आर्टरी का जो है वो नैरो है, while veins का जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है. Third difference. So first is regarding the type of blood. Ma'am, pressure in arteries is. Can you see that in the diagram? Can you see that in the diagram? Yes, ma'am, because the walls are thick to nullify the pressure. What nullify? Ma'am, the walls are thick to nullify the pressure. That is an indication. Okay, fine. Lumen. Lumen मतलब space. Space of artery is lumen of the artery is bit narrow while as compared to the veins. Okay. Fourth point. और ध्यान से अगर आप देखोगे तो वेन्स में एक वाल्व दिख रहा है आपको? ये वाल्व जो है वो आर्टरी में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. सो वेन्स valves present in veins, absent in artery. Arteries are narrowed to form the arterioles, while veins forms the venules. Narrow form of arteries are arterioles and narrow form of veins are venules. कितने डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं? Okay, shall I proceed for this? What was? Yes, arteries are narrowing to form the arterioles. Sir, what did you told about lumen? Lumen means the space through which the blood is flowing. This space is called lumen. Passage. So, in arteries, it is arteries, yes, narrow lumen, while veins have broad lumen. Shall I proceed?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Human heart. Okay. So first of all, cause this is not a heart. It's a wrong thing. ओके, ये हार्ट नहीं होता है, ये बुद्धू बनाते हैं. ठीक है, हार्ट ऐसा होता है जो यहाँ आपको दिख रहा है. ठीक है. So being a biologist you should know that human heart looks like this. So first of all, see this, then I will draw to make you understand each and every thing. Okay. Just follow the diagram of the human heart over here, and now I will draw. आपको ये डायग्राम जो है वो आपके सामने रखना है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना आप लोग. Yes, ma'am. तो आपको वो लेकर अपने सामने इसे रखना है, और मैं जो है एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगी, मतलब ज्योमेट्रिकली. ठीक है. तो वो हार्ट जैसा नहीं दिखेगा, बट इट विल इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो जस्ट सी दैट मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, हैव द शॉट ऑफ दिस, देन आई विल चेंज दिस लाइन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done, ma'am. टेकन. Yes, ma'am. गुड. नेपथ्य लेकिन है थी. डोंट वरी, आई एम गिविंग यू. सी दिस, the way I will be drawing, just आप अभी rush मत करो draw करने में, just wait and then you will be drawing. So human heart is made up of 4 chambers. Okay, sorry with this type of drawing, but this pen is working like this only. So, and I'm not very much good with it. So human heart is having 4 chambers in it. Okay. So how you will watch the chambers? What you have to do is have the human heart, cut it from the center and open it. So when you will open it, you can see the 4 chambers over there. Okay? Dissection. Yes, dissection. So when you are doing this, you can see the 4 chambers. Now these 4 chambers are the upper one. Okay? The one which is on the top, they are called auricles. These are called auricles. Okay? So this is the
right auricle, while this is the left auricle. आपके सामने आप ड्रॉ करोगे तो आपका राइट जो है वो आप लेफ्ट लिखोगे और जो आपका लेफ्ट है वो आप राइट लिखोगे। ओके, क्योंकि हम हार्ट खुद का तो निकाल के पढ़ नहीं सकते हैं, तो पेशेंट जो है वो हमारे सामने जो होता है तो वो हमारे सामने हमारा ऑपोजिट होता है ना, राइट लेफ्ट और राइट में, तो उसी तरह हमें स्टडी करना है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so right auricle, Some auricles are also known as atriums, right? atriums, yes, you can also say them as atrium. While this one, which is on the bottom side, they are the right ventricle and this is left ventricle. ये चीज समझ में आई सभी को? Yes, ma'am. गुड। नाउ ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में एक डोर होता है, एक पैसेज होता है। ठीक है, इस पैसेज को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। वाइल जो पैसेज इन दोनों के बीच में है उसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व while this is tricuspid valve। ठीक है, जो राइट साइड है वो ट्राई है, जो लेफ्ट साइड है वो बाय है। ये सभी को समझ आ गया? ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है, आप ऐसे ही डायग्राम मेरे साथ फॉलो कर सकते हो, साथ साथ में आप वो वाला हार्ट का जो डायग्राम है वो उसको भी देख सकते हो, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और क्लियर हो जाएगा पिक्चर। ठीक है, तो this much you have drawn? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत स्केल वगैरह लेके नहीं ड्रॉ करना है, फ्री हैंड ड्रॉ करो ताकि आपको समझने में इजी हो। नाउ सी दिस, हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड है वो कलेक्ट होता है ब्लड वेसल्स, तो एक बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स उसको कलेक्ट करती है, बट जब वो हार्ट के पास आता है तो एक बड़े से वेसल में कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जो लोअर बॉडी पार्ट है, जो नीचे है बॉडी में, हार्ट के नीचे, वहां से जो ब्लड कलेक्शन होता है, इट इज कलेक्टेड बाय अ वेसल दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वीना केवा, IVC। ओके, और जो बॉडी ऊपर से ब्लड कलेक्ट करती है हार्ट के तरफ तक, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, सुपीरियर मतलब ऊपर और इंफीरियर मतलब नीचे। वीना केवा इज अ कॉमन थिंग। नाउ सी दिस, दैट if this is a heart and the inferior vena cava which is collecting blood from the lower side of the body, it is coming over here, okay, and then वो यहाँ से डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकती है इस तरीके से, तो वो क्या करेगी, हार्ट के पीछे से टर्न लेके आएगी और वो कहाँ पर ओपन हो जाती है टर्न लेके आके, राइट ऑरिकल में। ठीक है, इसके पीछे से जा रही है और जाकर इस तरीके से ओपनिंग उसका होगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको? पीछे से जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली सुपीरियर वीना केवा है वो राइट ऑरिकल में डायरेक्टली एंटर होता है और उसकी भी एक ओपनिंग होती है लाइक दिस। सो यू हैव ओपनिंग ओवर देयर एंड यू हैव वन ओपनिंग लाइक दिस। सो दिस ओपनिंग वो पीछे से जाकर इस तरीके से एंटर होके अपनी ओपनिंग देती है। ये आप कैसे देख रहे हो, हार्ट को खोल के देख रहे हो तो आपको अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो दो दो ओपनिंग जो है वो पूरा का पूरा उनका काम क्या है, वो ब्लड को पोर करना है, राइट ऑरिकल। ठीक है, अब सी दिस, जब राइट ऑरिकल पूरा फिल हो जाता है तो वो ब्लड जो है वो मूव होता है वेंट्रिकल में। ओके, वो ब्लड मूव कहाँ होता है, वेंट्रिकल्स में। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। अब जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, उसको कलेक्ट करने के लिए भी एक ब्लड वेसल है। जो ब्लड वेसल कलेक्ट करके ब्लड को ओके, ये जो ब्लड वेसल है इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। इसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, राइट वेंट्रिकल से निकलती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब ये देखो, ये जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो ये जाती है सीधे डिवाइड, खूब सारे ब्लड वेसल्स में डिवाइड होने के बाद आर्टरी हम पढ़ते हैं ना, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बनेंगे, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज बन जाएंगे। सारी थिन कैपिलरीज हैं, वो कहाँ एंटर हो जाती हैं जाकर, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, are you drawing? Yes. Good. Yes, ma'am. Now see this, अब लंग्स में से वापिस से ब्लड वेसल्स जो हैं वो निकलते हैं, जो इस लंग से आ रहा है तो वो राइट ऑरिकल में डायरेक्टली होकर ओपन हो जा रहा है इस तरीके से, वही जो इधर से आ रहा है वो पूरा हार्ट को पीछे से टर्न होते हुए आएगा और देन इट विल ओपन ओवर हियर। इज इट क्लियर टू यू? ओके, ये जो ब्लड वेसल है वो ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है लंग से, और वो इस पर्टिकुलर हार्ट की साइड में जाकर वो ब्लड दे देगा। अंडरस्टूड दिस? सो दीज ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड pulmonary veins. These are called pulmonary veins. Understood this So, part? so ma'am, the auricle has two openings just because there are two lines. It's two part of it. Auricle have two. Two openings just because they are that is right one and left one. But that's all. I'm not getting your question, beta. फिर से पूछो. But these auricles have two openings just because the lungs have two. There are two lungs. Yes. Okay. One for oxygenated, one for the oxygen. I'm not saying right now oxygenate. मैं कोई भी वर्ड यूज नहीं कर, अभी सिर्फ मैं आपको हार्ट के पार्ट्स पढ़ा रही हूँ बेटा, पहले वो समझ लो, फिर कौन सा ब्लड कहाँ जाता है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये जो है ब्लड वेसल जो दोनों ओपन हो रहे हैं लेफ्ट ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल से जो सारा ब्लड है वो एंटर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। इज इट क्लियर टू यू? Ma'am, can you repeat it again? पल्मोनरी वेन्स, ये वाली और ये वाली, दैट मीन्स जो राइट लंग से आ रही है और जो लेफ्ट लंग से आ रही है, वो दोनों कहाँ एंटर होती हैं, लेफ्ट ऑरिकल में।
लेफ्ट ऑरिकल में एंटर हो जाने के बाद वो सारा जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर? थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसे बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्राल वॉल्व भी बोलते हैं, इट्स ओके। ठीक है, बाइकस्पिड इट्स बेटर। सो सी दिस, if this is done then the left ventricle जो है वो सारा ब्लड जो है कलेक्ट करके इस वेंट्रिकल से सारा ब्लड कलेक्ट होकर, सॉरी आई डोंट हैव द डिफरेंट कलर्स इन दिस, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा, मुझे नहीं पता है, कलर्स यूज कर सकते हैं। ओके फाइन, है कलर्स हैं, रुको। ये जो ब्लड वेसल है वो भी इस तरीके से जाके okay, now this blood vessel, the green one, is collecting the blood from the left ventricle, and this blood is given to the upper side of body, और नीचे के लिए वो पीछे से एक ब्लड एक और एक्सटेंशन देता है जो लोअर साइड ऑफ बॉडी को ब्लड पूरा पास ऑन करता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, नाउ ग्रीन वाला कहाँ पे जाता है? हाँ, वाला फूड को कहाँ पे लगता है? ग्रीन वाला वाली फूड से ब्लड कहाँ पे जा रहा है? कुछ ब्लड जा रहा है अपर साइड पे और कुछ ब्लड जा रहा है लोअर साइड पे। ठीक है, तो लंग्स में भी जा रहा है ना? नहीं, जो ग्रीन वाले ब्लड वेसल से जो है ब्लड वो बॉडी पार्ट्स के लिए जा रहा है। ठीक है। ठीक है, अभी हम ब्लड फ्लो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बट अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं एक्चुअली में। हाँ। Okay, now these blood vessels are also having valve in it. These valves are called semilunar valves. इनको हम बोलते हैं semilunar valve. ये सब semilunar. Is it clear to you? Yes. Okay, so this is how सेलुलर वॉल्स। semilunar. ओके। Lunar means moon. हाफ चंदा मामा जैसा होता है valve. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, fine. So just wait. This is how the heart will have the different sections of it. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ क्विक। जस्ट सी दिस, हार्ट इज हैविंग 4 चैम्बर्स। मैं एक बार फिर से ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करूंगी, डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर ऐसे आ जाएगा। हार्ट इज हैविंग द 4 चैम्बर्स। These 4 chambers, upper one are called auricles or atrium, किसी भी नाम से बोल सकते हो आप। Then lower one are called ventricles, right and left each. Now these right ventricle is giving the blood to the pulmonary artery, and just see this, and this pulmonary artery will take the blood to the lungs and all that. This is how it is being connected. Then from lungs this blood vessel will bring the blood and it gives to the left auricle, then it goes to the ventricle, and after
Is it? Is it done? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, fine. Now, do you want to see that how the original heart looks like? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं निकाल के नहीं दिखा रही हूँ. This is how it looks like. बिल्कुल भी डायग्राम जैसा है? No, ma'am. खतरनाक है ना? Yes, ma'am. मुझे पता था. ठीक है. सो डायग्राम बहुत सुंदर है, बहुत इजी भी है. ठीक है. बट ओरिजिनली हार्ट ऐसा होता है. इसको आप थोड़े और अलग एंगल से रख सकते हो, थोड़ा सा और डिफरेंस पता चलेगा. बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है. अच्छा, नॉन वेजिटेरियंस हो काफी लोग यहाँ पर? Yes, ma'am. Yes. You people can just have a look at the butcher's house and you can see the heart over there. Okay, those who are going for this especially that goat and all that, where they cut the goats, and then you can ask just to show you the heart, they will show you. Okay, and not right now, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप बुचर्स हाउस पे जा सकते हो, वहाँ हार्ट भी देख सकते हो, लंग्स भी देख सकते हो. डर लग रहा है? हम देख चुके हैं. देखा है? Who is that? ओरिजिनल हार्ट देखा है? Yes, ma'am. देख लेते. गुड. सो हैव यू टेकन इट इन हैंड? No, ma'am. But in one will see surgery of life surgery. लाइफ सर्जरी इन द कैबिन? Yes, ma'am. हाउ कम? What? हाउ कम यू रीच्ड इन द ऑपरेशन थिएटर? No, ma'am. YouTube is the story. हाँ, यूट्यूब में तो दुनिया जहान दिखता है बेटा. आई एम नॉट आस्किंग यू टू सी द यूट्यूब, आई एम आस्किंग फॉर यू दैट आपने ओरिजिनली हार्ट अपने हाथ में लिया है बुचर्स हाउस में अगर देखा है? No, ma'am. No, ma'am. हम हाथ में नहीं लिए लेकिन देखे हैं. हाँ, तो अब की बार जब देखने का मौका मिले तो उसको हाथ में लेके थोड़ा सा खोल के देखना उसको, उनसे परमिशन लेके, वरना मारेंगे पटक के तुमको. ठीक है? देख पाओगे ना? हम ट्राई करेंगे. गुड. सो फाइन. यस. जैसा मैम ये डायमेंशन है, हार्ट में कैसे दिखाता है? हार्ट में, हार्ट का डिस, हाँ, वो डायमेंशन में हो जाता है. वो डिसेक्शन नहीं करेगा, वो हलाल कर देगा वही. और ये रियल लाइफ में मेडिकल कॉलेज. हाँ, उसके लिए आपको 11 12 देने के बाद नीट देना पड़ेगा और तब मेडिकल कॉलेज वाला आपको देखने देगा. ठीक है? वहां पर एंट्री इतना इजी नहीं है ना बेटा. अच्छा, यस, ह्यूमन एनाटॉमी. अच्छा, I was not knowing that I can select the colors from here. So now I am drawing something again. Just see this, and I will be writing in shortcuts. So just see this. So let me draw the heart first of all. कैसा दिल बनाया जाए? काला बनाते हैं, काला ही सही है. Okay. So if this is a heart, 4 chambers. Okay, I am writing in short. Let me write over here. Right auricle,
right ventricle, left auricle, left ventricle. Is it clear to you? Okay, fine. अब मैं आपको ब्लड फ्लो समझाऊंगी कि ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड है और कौन सा ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। अब हम बनाएंगे, इसके बाद बनाते हैं वल्व्स। सो दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज bicuspid valves. Okay, so this is, let me write over here, tricuspid valve, bicuspid valve. Is it clear to you? Now see this, जो हमारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है, वो जो लोअर बॉडी पार्ट कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वीना केवा। IVC लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करने वाला, और ये अपर बॉडी पार्ट से कलेक्ट करने वाला, तो सुपीरियर वीना केवा। इज इट क्लियर? ब्लड जो है मैंने ब्लू कलर का वेसल बनाया है, दैट मीन्स इट्स अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि ब्लू ड्रॉ कर रही हूं, ध्यान रखो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, इट इज फुल ऑफ CO2, क्योंकि आपके बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर जाया जा रहा है ना हार्ट की तरफ, तो बॉडी पार्ट्स ने CO2 दे दिया है, ऑक्सीजन ले लिया है। अब ये CO2 वाला जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, राइट ऑरिकल में एंटर कर रहा है। एक एंट्री यहां से और एक एंट्री इस तरफ से, दोनों के दोनों ब्लड पोर कर रहे हैं। कैसा ब्लड पोर हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड इन राइट ऑरिकल। नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is passing through this tricuspid valve and it is filling up the right ventricle. अभी भी blood deoxygenated ही है. Okay, see this. Now this blood will be collected by, let me use this purple. So अब ये कलेक्ट किया जा रहा है एक मेन ब्लड वेसल से, जो दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा खुद को इस तरीके से। एक जाएगा लेफ्ट लंग की तरफ और एक जाएगा राइट वाले लंग्स की तरफ, ठीक है। इस वेसल को, पर्पल वाले को हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। अब बहुत ध्यान दो, जब अभी हमने ब्लड वेसल का डिफरेंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पढ़ा डिफरेंस हमने? ओके, बट देयर आर एक्सेप्शंस नाउ। अब हम कुछ हट के पढ़ रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर आर्टरी जो है वो कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। आ रहा है समझ में? ओके, क्योंकि ये बॉडी से कलेक्ट हुआ ब्लड है जो राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा है, राइट वेंट्रिकल ने ये सारा ब्लड दे दिया है पल्मोनरी आर्टरी को। अब बहुत ध्यान से समझो, जब भी पल्मोनरी वर्ड आता है, pulmonary means we are talking about lungs. It is a compulsory rule for each and every time. ठीक है? Pulmonary means जहां पे भी pulmonary word है, that means you are talking something about lungs. अभी कोरोना में तो आप कई बार pulmonary सुन चुके होंगे अगर आप लोग न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ते होंगे, जो कि आप नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए आपको pulmonary पता नहीं होगा। पता भी होगा तो जानने की कोशिश नहीं की होगी, इसलिए अभी जानो कि pulmonary वो चीज है जो लंग्स के थ्रू कनेक्ट होती है। ओके, लंग्स से कनेक्टेड है। दिस आर्टरी इज कनेक्टेड विद लंग्स
ये हार्ट को लंग से कनेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. नाउ इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू द लंग्स. अब लंग्स को हम बनाते हैं येलो कलर का. सो दीज आर योर लंग्स. ओके, these are your lungs. So these pulmonary artery, what it will do, artery will divide in arterioles. उस डिवाइड होगा arterioles में. आर्ट्रियोल जो है वो थिन पैसेजेस में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज. हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज. ठीक है, आर्टरी बनेगा आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से बन जाएगा कैपिलरीज. और ये सारी कैपिलरीज जो है वो जाकर लंग्स का एक यूनिट होता है स्मॉल, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. इसको बोलते हैं एल्वियोलाई. इस एल्वियोलाई में जाकर घुस जाएगा. ठीक है, इस एल्वियोलाई के अंदर जो हम सांस लेते हैं वो वाला ऑक्सीजन पहले से वेट कर रहा होता है कि कब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो मैं उसका CO2 जो है रख लूंगा और अपना O2 वापिस उसको दे दूंगा. ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो सारा ब्लड है वो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस में डिवाइड हो जाएंगे वो. ठीक है, अब ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन CO2 अपना दे देगा. जितना भी ब्लड है वो अपना CO2 यहाँ पर रिलीज कर देगा. इट विल गिव इट्स CO2 इनसाइड द लंग्स. सारा CO2 दे देने के बाद अब दूसरी कैपिलरीज रहेंगी. ये कैपिलरीज जो हैं वो इन्हीं से कनेक्टेड रहती हैं, इन्हीं कैपिलरीज से कनेक्टेड रहती हैं. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज बीइंग कनेक्टेड. all of them are connected. They become red in color. क्यों? क्योंकि अब इनके पास ऑक्सीजन आ गया है और ये जो है वापस से आर्ट्रियोल बनाएगी. आर्ट्रियोल जो है, अरे सॉरी, वेन्यूल बनाएगी और वेन्यूल जो है एक बड़ा सा वेन बना देगी. ये बन गया बड़ा सा वेन. इधर से भी एक ब्लड वेसल जो बाहर निकलेगा अच्छा वाला ब्लड लेके, उसे हम बोलेंगे वेन. क्योंकि लंग्स में से बाहर आ रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन. सिमिलरली यहाँ पर भी ये भी क्या है, पल्मोनरी वेन है. ये पल्मोनरी वेन जो है वो अच्छा वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर वापिस से हार्ट में एंटर होगा. पहले हार्ट में एंटर हुआ था गंदा वाला ब्लड लेके, अब वेन जो है अंदर जा रहा है अच्छा वाला ब्लड लेके. तो इट विल डंप दिस गुड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है, ये सारा का सारा ब्लड यहाँ डंप हो जाएगा. देन दिस ब्लड विल बी passing through this and reaches to left ventricle. Okay, now left ventricle से अब एक नया ब्लड वेसल निकलेगा. ठीक है, एक और ब्लड वेसल है. कलर दिख रहा है? Can you see this? Yes. ये blood vessel जो है, let me draw it red only. It will be easy for you. अब ठीक है, ये blood vessel जो है वो अच्छा वाला blood लेगा. अब वो डिवाइड हो जाएगा. देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको अपर बॉडी पार्ट को देना है, तो यहाँ से वो अपर बॉडी पार्ट को ये ब्लड देकर यहाँ से सारा अपर बॉडी पार्ट को चला जाएगा और यहाँ से ये सारा ब्लड जो है वो इस पर्टिकुलर
जगह से, आर्टरी से लोअर बॉडी पार्ट्स को मिलेगा। और इस ब्लड वेसल को हम, ये बहुत मेजर ब्लड वेसल है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक अयोर्टा। इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक अयोर्टा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड या हमेशा डीऑक्सीजन, वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है, वो मिथ अब गलत हो गया। हार्ट में सब कुछ उल्टा है। हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। सो ये जो चीज है वो डिफरेंस है। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ द ब्लड विल फ्लो इन द हार्ट ट्वाइस। ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार एंटर होगा, एक बार बॉडी से हार्ट में, फिर हार्ट से गया लंग्स में, फिर लंग्स से वापिस आ गया हार्ट में। ठीक है, क्योंकि वो 2 बार एंटर हुआ है हार्ट के अंदर और सर्कुलेट किया है एक ही सैंपल ऑफ ब्लड, जो एक ही ब्लड था वो ही, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके, और ये इस जगह पर भी वॉल्स की प्रेजेंस है। इन वॉल्स को हम बोलते हैं सेमिल्यूनार वॉल्स। ठीक है, सेमिल्यूनार वॉल्स मतलब ये वॉल्स जो होती है ना, ये जब ब्लड जाता है तो ये इस तरीके से खुल जाती है, ब्लड फटाफट अंदर भर जाता है, ये वापिस बंद हो जाती है। अब वॉल्स की प्रेजेंस क्यों है सब जगह पर? ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो हो वो रुक जाए, कभी भी वापिस वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ जाना चाहिए। एक बार वेसल्स में घुस गया है, उसको आगे जाना है। अगर वो वापिस ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा तो देयर विल बी डेथ, सडन डेथ हो जाएगी पेशेंट की। इसलिए वाल्व जो है वो काम करती है। इसलिए आपने सुना होगा कि जिन लोगों का हार्ट का इलाज चल रहा होता है तो डॉक्टर बोलता है कि इनका वाल्व कमजोर है, सुना है? Yes, ma'am. ओके, तो दैट मीन्स इन लोगों के ब्लड के फ्लो को जो है वो कंट्रोल करने की ताकत खत्म हो गई है वाल्व्स की। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वीक। सो ब्लड को कभी बैक फ्लो नहीं करना है, उसको एक बार गया है तो वैसे और उसी पैसेज से वापिस आना है। वो बैक फ्लो वेंट्रिकल में करेगा तो डेथ हो जाएगी इंसान की। नाउ दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Good. Now see this. This is how the double circulation can be seen. It's bit typical, but I will write down a bit easier flow chart over here. See this. हमारी बॉडी से सारा ब्लड जो है वो कलेक्ट करने वाला कौन है? 2 लोग हैं, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर, sorry, let me write down with this wait, with this. ठीक है, बॉडी पार्ट्स ब्लड देते हैं डीऑक्सीजनेटेड, किसको देते हैं? सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा। दोनों ले जाके ब्लड डंप करते हैं राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी, सॉरी नॉट पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है, ओके, हु इज दिस? मायूष 07 एंड रेडमी के नाम से जो भी ज्वाइन किए हैं बेटा अपना नाम डालो, अटेंडेंस हो रहा है। ठीक है, ज्वाइन विथ योर ओरिजिनल नेम। आपको ये हर बार हमको नहीं समझाना है बेटा। रेडमी है और एक कोई जो भी है, अपने ओरिजिनल नेम से आ जाओ। आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा नाम दिया है आपको, क्यों छुपा रहे हो? ठीक है, सी दिस, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी कलेक्ट करेगी उसको। आर्टरी ले जाएगी कहां पर?
लंग्स में। लंग से अब ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा, तो वो आ जाएगा कहाँ पर, पल्मोनरी वेन्स में। वेन से ब्लड जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा सिस्टमिक अयोर्टा में, और अयोर्टा जो है वो बाकी के बॉडी पार्ट्स को, अपर और लोअर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीजन वाला ब्लड। ओके, सो दैट मीन्स if I divide this much of division, यहां जब अपर वाली साइड में, यहां पर जब तक ब्लड चल रहा है, ये लंग्स के आसपास घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बाकी का जो है वो हार्ट और बॉडी पार्ट से रिलेट करता है, तो हम इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन मिलकर बनाते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि 2 बार एंटर किया है ब्लड हार्ट में, दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Easy to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. So if this is done, then you should know. Have you changed? Redmi and सभी ने बदल लिया आपका नाम? Shall I change the slide? Yes, ma'am. How to remove this? Can you see the double circulation now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let me zoom this part a bit. See, देखो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट हो रहा है सारा का सारा। Yes, ma'am. देखो इसको बोल रहे हैं ना इंफीरियर वीना केवा, दूसरा नाम पोस्टीरियर वीना केवा भी हो सकता है, इट्स ओके, यू कैन से एनी वन ऑफ देम। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग कलेक्टेड। देखो हार्ट में चला गया, फिर ऊपर से कलेक्शन होकर आ रहा है, वो भी सारा हार्ट में चला गया, ठीक है। अब ये सारा ब्लड जो है वो देखो वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से बाहर निकल के ये लंग्स की तरफ जा रहा है, ये देखो जा रहा है। समझ आ रहा है? स्क्रीन में दिख रहा है ना आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा,
हियर, ठीक है। सो ये इंफीरियर वीना केवा से आया, ये सुपीरियर वीना केवा से आया, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से देखो ब्लड वेसल ने पल्मोनरी आर्टरी ने कलेक्ट किया, इधर लंग्स में दे दिया, इधर लंग्स में दे दिया। लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन होने के बाद देखो ब्लड एक वापिस ऑरिकल में इधर आया, ये वाला लेकर आ रहा है ब्लड, घूम फिर के लेकर आया वहां पीछे से और वो इधर दे रहा है, ठीक है। ये सारा ब्लड दे दिया। अब ये वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से जब बाहर निकला तो अपर बॉडी पार्ट में चला गया और लोअर बॉडी पार्ट से के लिए भी अवेलेबल हो गया। ये चीज क्लियर हो गया है। This picture is clear to you? Yes, ma'am. बस तो I hate this. Why it is not? Okay. Now see here also the blood circulation, double circulation is being shown. This is how the blood is being poured, going over the ventricles, this blood vessel. Then अच्छा वाला blood जो है वो अंदर आ गया है हार्ट में और कैसे बाहर जा रहा है। सिंपल सेम डायग्राम अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये जो डायग्राम है हार्ट का वो अच्छे से लर्न कर लेना है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, यू हैव टू लर्न इट थॉरली एनी हाउ। फाइन। Yes. So your homework is draw the diagram of the human heart showing the blood circulation, double circulation का एक फ्लो चार्ट, ये सब आपको अच्छे से करना है। एंड रीड योर टेक्स्ट बुक्स regarding the human heart circulation thoroughly, line by line. Understood? Any question? अगर ये डायग्राम बोलेगा ड्राइंग करने के लिए तो आपने जो डायग्राम ड्राइंग किया मेरा वाला स्क्वायर वाला एग्जामिनर तुमको घर में से ढूंढ के निकालना है। चाहते हो ऐसा? नहीं चाहते हो? ये वाला लर्न करो, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ करती हूँ मैं, क्योंकि वो लाइन डायग्राम है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू मेक अंडरस्टैंड दैट स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। बट यस, diagram of human heart you have to draw and learn, and blood circulation का फ्लो चार्ट आपको लर्न करना है अच्छे से, डबल सर्कुलेशन का। And third is read the circulation part from your textbook thoroughly. Clear? Yes. Yes, ma'am. Now any doubts? No, ma'am. ठीक है, अच्छा अभी आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ। पूरी बॉडी को ब्लड मिल रहा है ब्लड वेसल्स से, अलग अलग टाइप के ब्लड वेसल है जो बॉडी से कलेक्ट भी कर रहे हैं और बॉडी को दे भी रहे हैं। बट हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हार्ट भी तो मसल है एक टाइप का। तो हार्ट को ब्लड देने वाली ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? लंग्स को देते हैं तो हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं। Cardiac vessels. कार्डियक वेसल्स, वेरी स्मार्ट आंसर, क्योंकि कार्डियक मसल है इसलिए।
कार्डियक वेसल है तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा ब्लड दे रहा है, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड। सिंपल लॉजिक समझो कि जो हार्ट है वो भी मसल है, तो वो बीट करता है। जब वो बीट करता है, मैकेनिकल वर्क करता है, तो उसे भी ब्लड और ऑक्सीजन इन सब चीजों की जरूरत है, तो उसके पास भी तो ब्लड वेसल्स होने चाहिए, Yes, ma'am. होने चाहिए ना, जो उसके मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचा सके, और जो उसने हार्ट ने काम किया है, जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है, उस CO2 को कलेक्ट करके उसको लंग्स तक वापस डिपॉजिट कर सके। ऐसे ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। What is the name of the blood vessel which is supplying blood to the heart muscles? What is the name of the blood vessel which is supplying blood to heart muscles? Clear? गूगल किया? बोलो। coronary arteries, फिर से बोलो। coronary arteries, यस, कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। कहां से मिला आंसर? सच बताना, वरना यहां से अभी गायब कर दूंगी। बुक में तो नहीं है। हाँ ठीक है, लिखने की जगह सीधे क्वेश्चन गूगल पे टाइप किया ना, क्वेश्चन लिख दिया। आओ आओ, तुमको पटक पटक के पिटाई करूंगी जब फिजिकल क्लास में आओ, ठीक है? हाँ, तो आंसर के लिए पेशेंस भी होना चाहिए ना। गूगल कर दिया, गूगल ने उल्टी कर दिया कोरोनरी। अब हम उसके आगे विचार, सोच विचार हमारा खत्म। क्या कोरोनरी, क्यों कोरोनरी, हम वो नहीं। अभी तो कोरोना कोरोना ही सबको दिखेगा, ये कोरोनरी कुछ नया आ गया, ठीक है? सो कोरोनरी स्पेलिंग बोलो। Coronary arteries and coronary veins are responsible for supplying the blood to the heart muscles, ठीक है? वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, हार्ट में ही होते हैं, लंग से निकलते हैं, हार्ट के आसपास ही रहते हैं, वो कहीं भी बॉडी में और कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है? सो दीज आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। ओके, अब दूसरी चीज, एक छोटा सा एडिशन, क्योंकि आपकी जब अपना मैकेनिकल वर्क करता है और ये ब्लड वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स कलेक्ट करते हैं, तो आपकी हार्ट बीट का 2 साउंड जनरेट होता है। कभी अपनी हार्ट बीट ध्यान से सुनी है? Yes, ma'am. ठीक है, तो बॉलीवुड वालों को पकड़ के मारो, क्योंकि एक साउंड नहीं है जो वो सुनाते हैं तुमको कि धक धक। इट इज वेरी रॉन्ग। इट शुड बी love and dub. 2 sounds are there. One is love and one is dub. Okay? और वो आवाज क्यों आती है? क्योंकि ये सेमिलुनर वॉल्व जो हैं, जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड एंटर होता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये वाल्व जो है वो खुलती है प्रेशर के साथ और ब्लड पूरा चला जाता है अंदर,
तब आता है फर्स्ट साउंड, और उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई होने वाला होता है पूरे बॉडी को, तब दूसरी बार वाल्व ओपन होता है, तब आता है दूसरा साउंड, लव एंड डव, 2 साउंड। तो हिंदी पिक्चर और हिंदी सीरियल और हिंदी उसमें देखकर इट इज नॉट धक धक। अब बायोलॉजी वाला अगर कोई वो वाला साउंड बोलेगा तो मैं बहुत पिटाई करूंगी। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, गुड। ma'am. हाँ, बट पब्लिकली ऐसे गाने मत जाना, वरना पब्लिक तुमको पीटेगी। ठीक है? नाउ 72 बीट्स पर मिनट आइडियल, 75 भी हो सकती है, 76 भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट फेल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है? बट 72 बीट्स पर मिनट है। एक बीट को लगता है 0.08 सेकेंड्स, 1 बीट, जिसमें से आधा 0.04 सेकेंड जो होता है वो फर्स्ट साउंड लेता है, और 0.04 लास्ट वाला 1 सेकेंड में, बीच के 3 सेकेंड्स में बहुत कुछ काम होता है। तो पहला साउंड निकलता है 0.04 सेकेंड पर, और लास्ट का जब 0.01 सेकेंड बचता है तब डब साउंड बचता है, तब बन जाती है आपकी 1 हार्ट बीट। ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है? ये आपके बुक में नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? Yes. Yes, ma'am. गुड। सो में डबल सर्कुलेशन, या मैम बुक में डबल सर्कुलेशन के बारे में पूरा इतना डिटेल पे है क्या? read, you will come to know. Okay, when you will be reading you will come to know कि बहुत सारी चीजें क्या एडिशन आपको करना चाहिए और क्या मिसिंग है, और क्या अच्छी चीज है। बुक में भी हो सकता है मैं कुछ नहीं जानती होंगी तो आप मुझे बता दोगे, है ना? तो रीड योर टेक्स्ट बुक्स थॉरली एंड नेक्स्ट क्लास डायग्राम आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए प्रो। अब आप बोलोगे मैम ऑनलाइन है, चेक तो करेगी नहीं मैम, कैसे देखेगी? हम कुछ भी दिखा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ भी दिखा दोगे तो बेटा मेरा तो कोई लॉस नहीं होने वाला, ना ही मेरा हार्ट फेल होने वाला है। लेकिन अगर एग्जाम में नंबर कम आए तो अपना और अपने पेरेंट्स का जरूर सोच लेना और उनके हार्ट का सोच लेना। ठीक है? तो इसी ईमानदारी से काम करना एंड हैव अ गुड नाइट फर्दर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फॉर द होल वीक। ओके, सब लोग सही हो ना? कोई बीमार तो नहीं पड़ा है? No, ma'am. No, ma'am. गुड। ठीक है? बी स्ट्रॉन्ग, बी इम्यून। Okay, ma'am. गुड बाय। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye.